The first Polo was manufactured at the Volkswagen plant in Wolfsburg. It was unveiled in 1975. Do you know that it was a rebadged version of the Audi 50? There were differences in Audi models and Volkswagen models. Volkswagen models being cheaper and much more basic. The first gen of the Mark I Polo was also known as the Volkswagen Derby. It had two petrol engine options, one 895cc and the second one 1093cc, producing 50 bhp. The Mark I production run finally ended in the year 1981 with over 5 lakhs Polos sold worldwide. The Volkswagen Polo Mark II is the second generation of the Volkswagen Polo, launched in the year 1981. Model interiors were upgraded, the quality was improved, as well as the design of the car was changed. This generation of Polo specifically focused on making the Polo a more reliable car, a rust-free car, and a car that could sustain a blooming life of almost 10 to 15 years of age. एंड इस जनरेशन में फाइनली जो 895cc का इंजन था उसको अपग्रेड किया गया था 1043 इंजन cc that produced almost 45 bhp. The design was changed and many more cosmetic as well as interior were upgraded in this particular model. एंड इस जनरेशन में पोलो को एक मोर रिफाइंड, एक मोर यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाया गया था. Talking about the Mark III, it was unveiled in 1994 and it remained till 2002. So here the design was completely changed, interiors were given a new look, the overall quality and material used in the Polo were taken to next level. And range of models were also introduced. Features like heated electrically adjustable mirrors, 4-speaker stereo, pollen filter, center locking, rear head resistance, split rear seats, fog lights, alloy wheels and airbags were introduced in this generation. And almost 32 models with 7 engine options were given to customers to choose from. By this generation, Polo almost completed 21 years in the market, and it was known as a car with the excellent build quality and a bulletproof reliability. Yes, I am, and I can't help but love you so. I'm my man. Hey, yo. It is the year 2009 when Polo debuted in the Indian market. Now let's see why Polo is so special. Talking about the front, you get a Volkswagen logo. And definitely Polo को जो भी देखता है वो confused तो नहीं होता because Polo has its own identity. Polo is a small car, but the looks, the presence of the car is felt and ये एक differentiating factor है. अब कीज़ की बात करें तो कीज़ सिंपल मिलती है बट यू गेट फ्यू फीचर्स इन द कीज़, वो मैं आपको बाद में दिखाने वाला हूँ. इसमें आपको कोई भी पुश बटन नहीं मिलता. टॉकिंग अबाउट द हेडलाइट्स, इसकी हेडलाइट्स आपको हैलोजन मिलती थी एंड फॉग लैम्प्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं. तो कुछ ओवरऑल हेडलाइट्स का सेटअप ऐसा दिखता है. अब अगर बात करें
सो पोलो की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। एंड यहाँ पे आपको एक हुक मिलता है, आप ये लिड देख सकते हैं, तो इफ़ यू प्रेस दैट लिड एक हुक मिलता है, यू कैन फॉर टोइंग। अब साइड से आ जाते हैं। साइड से गाड़ी आपको कुछ ऐसी दिखती है। जो पोलो की लेंथ है इट इज़ 3971 mm। साइड से पोलो जो है इट लुक्स सिंपल येट इट हैज़ अ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर। अब यहाँ पे आपको टायर्स मिल जाए, दीज आर नॉट अलॉय व्हील्स, एंड फ्रॉम द रेयर द कार लुक्स लाइक दिस। सो पीछे से गाड़ी आपको कुछ ऐसी मिल जाती है, फोक्सवैगन का लोगो मिल जाता है आपको, पोलो रिटन, एंड सिंपल सा आपको बूट मिलता है, लाइक लोगो से जैसे बूट खुलता है एज यू कैन सी। एंड ओवरऑल जो पोलो की बूट स्पेस है दैट इज़ 351 लीटर्स। यहाँ पे आपको ट्रे भी मिल जाती है। सो ओवरऑल इट्स अ गुड स्पेस। यहाँ पे आपको स्टेपनी टायर मिलता है इन द बूट। मैंने आपको बताया था पोलो की कीज़ में एक स्पेशल फीचर है, लेट्स चेक इट आउट। तो फ्रेंड व्यूअर्स, कैसा लगा ये फीचर्स? अब अगर इंटीरियर्स में बात करते हैं पोलो के, सो यहाँ पे आपको मिरर एडजस्टिंग स्विच मिल जाता है, एंड ऑल दी पावर विंडो स्विचेस आर हेयर। यू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ स्पेस। एंड यहाँ पे टिपिकल जर्मन स्टाइल आपको हेडलाइट कंट्रोलर मिल जाता है, लाइक दिस, यू हैव टू पुल इट। सो यहाँ से आप हेडलाइट जला सकते हैं। आप अगर स्टीयरिंग की तरफ चलते हैं, सो कुछ ऐसा स्टीयरिंग आपको मिलता है पोलो का। यू गेट अ फोक्सवैगन लोगो इन द सेंटर। स्टीयरिंग पे आपको कोई स्विचेस या बटन्स नहीं मिलते, बट आपको बटन्स लेआउट डैशबोर्ड का ऐसा दिखता है। एसी वेंट्स, 2 सिस्टम, यहाँ पे आपको नॉब्स मिल जाती है। एंड यहाँ पे 5 स्पीड मैनुअल गियर पोलो में आपको मिलता है। हैंड ब्रेक एंड कुछ ओवरऑल जो डैशबोर्ड का लेआउट है वो ऐसा मिलता है। सनशेड्स आपको मिल जाते हैं, एंड ऑटो डिमिंग मिरर तो नहीं है बट मैनुअल डिमिंग मिरर आपको मिलता है। लाइट्स। सो डैशबोर्ड का ओवरऑल लुक ऐसा मिलता है आपको पोलो का। पीछे से अगर बात करते हैं, जो सीट्स हैं, द सीट्स कंफर्ट इज़ गुड। दिस पर्टिकुलर जनरेशन यू डोंट गेट एनी हैंड रेस्ट इन द रियर सीट। बात करते हैं अबाउट द पावर अंडर द हुड। पोलो का जो इंजन लेआउट है वो आप लोगों को ऐसा मिल जाता है, एंड दिस इज़ अ पेट्रोल इंजन। फ्रेंडियों, अगर आप लोगों को अभी तक ना वीडियो पसंद आ रहा है, तो जस्ट वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल द क्लासिकल मोटरहेड, एज वेल एज लाइक दिस वीडियो और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स यहाँ ड्रॉप करो। और एक और बात है, अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई क्लासिकल या विंटेज कार्स हैं, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन द ईमेल प्रोवाइडेड, एंड वी कैन मेक अ गुड कोलैबोरेटिव वीडियो। So please do reach out to me. So this is a 1.2 liter petrol engine producing 75 bhp and it has a torque of 110 Nm. Now let's drive the beast. अब अभी मैं पोलो में बैठा हुआ हूँ, एंड ओवरऑल जो फील है गाड़ी चलाने की वो काफ़ी अच्छी है। इनिशियल पिकअप इज़ रियली गुड, एंड गाड़ी जो है 1-2 सेकेंड गियर में काफ़ी अच्छी पुल हो रही है। पोलो की एडवांटेज क्या है, द लो एंड टॉर्क ऑफ पोलो इज़ रियली गुड। बीइंग अ हैचबैक, जो ओवरऑल जो पोलो की शेप है वो उसको हेल्प करती है टू गेन मोमेंटम फास्ट। अब अभी मैं जहाँ चला रहा हूँ, दिस इज़ अ सिटी रोड, सो मैं गाड़ी को इतना रेव नहीं कर रहा, बट व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम सेवरल कस्टमर्स जो पोलो के ओनर्स हैं, वो बताते हैं कि एरोडायनामिकली द कार इज़ रियली गुड। आप इसको कितनी भी स्पीड में भगाओ, द कार इज़ वेरी स्टेबल एंड यू गेट कॉन्फिडेंस वाइल ड्राइविंग द कार। सो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ जो पोलो है, एंड डेफिनेट आजकल के टाइम पोलो यूज़ कार मार्केट में काफ़ी मिलती है, एंड पोलो के काफ़ी फैन फॉलोइंग है।
एंड अगर आप Volkswagen लेना चाहते हैं, स्पेशली इफ़ यू वांट टू बाय पोलो, सो जस्ट मेक श्योर दैट द कंडीशन यू गेट इज़ इन रियली गुड. पोलो में ऐसा जितनी प्रॉब्लम्स नहीं आती, बट यू हैव टू कीप एन आई ऑन कि अगर रस्टिंग इश्यूज़ आ रहे हैं कि Volkswagen की आपको सर्विस आपके पास नेटवर्क एरिया में है या नहीं है. एंड ये अगर आप चीज़ों का ध्यान रखेंगे, सो आई थिंक पोलो में there is no more points to discuss about, because Polo has proved itself, and it has actually served as a very very reliable as well as robust car. Polo के बारे में और भी वीडियोस आएंगे with various versions of Polo, but in the frame आज हमारे पास ये पर्टिकुलर मॉडल है पोलो का. सैडली पोलो तो इंडिया से डिसकंटिन्यू हो चुकी है, बट इंटरनेशनल मार्केट्स में इसके और भी मॉडल आते हैं. Mark 6 is there, and the newly launched Polo is also available in the international market. सो फ्रेंड व्यूअर्स, आप लोग में से कौन कौन चाहता है कि पोलो को डेब्यू फिर से इंडिया में करना चाहिए? एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, सो डू लाइक माई दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज फ्रेंड व्यूअर्स मैं ऐसी गाड़ियाँ लाता हूँ जिनसे हम सब कनेक्ट करते हैं. सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब.